I bring greetings to all the viewers in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे दर्शकों को मैं अभिवंदन करता हूँ। In the last episode, we have learnt how the Lord is concerned about us. और पिछले एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से परमेश्वर हमारी देखभाल करता है। He says, even the hairs of your head are numbered. वो कहता है कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिन चुके हैं। So even the problems and the pains you are undergoing, He is aware of. और तुम जो समस्याओं और चिंताओं में से जा रहे हो वो सब बातें वो जानता He है। will surely deliver you from every one of them. वो जरूर उन सब से आपको छुटकारा देगा। And now He is telling you to confess Him. और अब वो आपसे कहता है कि आप उसको कबूल करें। Not just believe in your heart and reject Him. केवल अपने हृदय में विश्वास करें और उसको नकार न दे। And you need to believe and also confess that He is Jesus the Christ and the Lord of your life. केवल मानना ही नहीं लेकिन मुंह से कबूल करना कि यीशु जो है वो मसीहा है और तुम्हारे जीवन का प्रभु। He says in verse 37 of Matthew chapter 10, और 37 वचन मत्ती 10 में कहता है, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय कर जानता है वो मेरे योग्य नहीं। And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय करता है वो मेरे योग्य नहीं। So if you could not confess Jesus because of your father or mother, you cannot enter into the kingdom of God. अगर आप अपने माँ या बाप की वजह से यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। You know that Jesus is true, आप जानते हैं कि यीशु सही है, but because your mother and father are opposing the name of Jesus, you are not confessing, you are not coming out, you are scared of them. इसलिए कि आपके माँ बाप जो है उनको मानते नहीं है, आप उनसे डरते हैं, आप उनको कबूल नहीं कर पाते। And if your son or daughter, और आपका पिता पुत्र या बेटी, or if they don't like Jesus and because of them you are not confessing the name of Jesus, you cannot enter into the kingdom of God. अगर वो पसंद नहीं करते और उनकी वजह से आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। The Bible says, और बाइबल में लिखा है, He that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me. जो उसके क्रूस को उठाता और मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरे योग्य नहीं। What does it mean by taking his cross? और अपने क्रूस को उठा लेने का मतलब क्या है? What did Jesus do on the cross? यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है? He crucified his flesh on the cross. और उसने अपने देह को क्रूसित कर दिया उस क्रूस में। All the mortal deeds, the world and the lusts of the flesh are being crucified on the cross. सारे नश्वर बातें, नास्तिक के बातें और नैसर्गिक बातें और वासनाएं उसने क्रूसित कर दिया। And the sin is also crucified on the cross. और पाप भी जो है क्रूसित हो गया उस क्रूस पर। In the same way, you cannot commit sin and follow Jesus. और इसी तरह से आप पाप करके यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। You cannot steal and lie and carry on in Jesus. आप चोरी करे, झूठ बोले और फिर भी आप जारी रखे, ऐसा नहीं हो सकता। So you need to carry the cross तो आपको वो क्रूस ले लेना है, and then follow Him. फिर उसके पीछे हो लेना है। That means you have to be transformed and renewed in your works. इसका मतलब ये है कि आपको पूरी तरह से बदलना है, आपको नया होना है, संजीवन होना है अपने काम में। You cannot commit adultery. आप जो है वे विचार नहीं कर सकते। You cannot see everything. आप सब कुछ नहीं देख सकते। You cannot talk everything. आप सब कुछ बोल नहीं सकते। You cannot hear everything. आप सब कुछ सुन नहीं सकते। You need to do everything in line with the word of God. आपको सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मुताबिक करना है। So when you put away the things of the world because of the word, जब दुनिया के बातों को आप दूर कर देते हैं वचन के वजह से, you have crucified the world on the cross. आप जो है क्रूसित कर देते हैं दुनिया को क्रूस पर। And then you follow Jesus. तब आप यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। And that is valid. और उसका जो है कीमत है। Many people carry the world along with them. बहुत सारे लोग जो है दुनिया को अपने साथ ले चलते हैं And they follow Jesus. और वो यीशु के पीछे चलते हैं। That is not acceptable. और ये जो है स्वीकरणीय नहीं है। That is rejected. वो नकारा जाता है। And now in verse 39. और जो है 29 में, He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. और 39 में कहा है कि जो अपने प्राण को बचाता है वो खो जाएगा और जो अपने मेरे कारण अपने प्राण को खोता है वो पाएगा। So if you lose anything for Jesus, अगर आप कोई चीज जो है यीशु मसीह के लिए खो देते हैं, you will not lose it really. आप सच में उसे नहीं खोते, You will get it back. आपको फिर से प्राप्त होता है। But if you want to hold on something, if you confess Jesus, परंतु आपको किसी को पकड़े रहना है यीशु मसीह को कबूल करने के लिए, you know, if you reject Jesus and you take hold of something else, अगर आप यीशु मसीह को नकारते हैं, कुछ और चीज को पकड़े रखते हैं, you lose it. आप उसे खो बैठते हैं। So anything you lose for Jesus, you will get it back. आप कुछ भी क्यों ना यीशु मसीह के लिए खो दे, फिर से आपको प्राप्त होगा। Bible says in verse 40, और 40वें आयत में कहता है, He that receiveth you receiveth me,
जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, And he that receiveth me receiveth him that sent me. जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। When you receive a man of God जब कभी आप मनुष्य को जो परमेश्वर का है उसे स्वीकारते हैं and you listen to his words which are from God, और आप उसका सुनते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, then you receive Jesus. तब आप यीशु को स्वीकारते हैं। When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकारते you हैं, receive the God the Father. आप पिता परमेश्वर को स्वीकारते हैं। For example, you are receiving my words. इसका मतलब उदाहरण के लिए मैं देता हूं कि आप मेरे वचनों को सुन रहे You are हैं, switching on the television and you are hearing the words that I speak. आप टेलीविजन को चालू करते हैं और मेरे वचनों को सुन रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, And I am speaking the word of God. और मैं परमेश्वर का वचन को बोलता हूं। That means you are accepting me and my word. आप इसका मतलब ये है कि आप मुझे और मेरे परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे So हैं। you are accepting Jesus. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे And हैं। in return, you are accepting Father himself. उसका मतलब ये है कि आप पिता परमेश्वर को स्वीकार रहे हैं So God himself can come and dwell with you. और परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आपके साथ रहेगा। The Bible says in verse 41, और 41 में लिखा है, He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे उसे भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। There is a great mystery in this verse. और इस वचन में बहुत बड़ा रहस्य है। Normally, when you receive a prophet in your house, जब आप जो है अपने घर में जो है भविष्यद्वक्ता को स्वीकारते हैं and when you show him all hospitality और सारा प्रेम और अनुग्रह दिखाते हैं and give him all facilities, और हर प्रकार की जो है आप उसे सहूलियत देते हैं, and then you will receive his reward. तब आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। What does it mean by receiving his reward? उसका प्रतिफल प्राप्त करने का मतलब क्या है? You know, a prophet is highly honored by God आप जानते हैं कि प्रति नबी जो है परमेश्वर से महान रीति से आदरणीय है, because he speaks only the word of God. क्योंकि वो परमेश्वर का केवल वचन को बोलता है। God has a special place for the prophet in his heart. और भविष्यद्वक्ता के लिए उसके हृदय में, परमेश्वर के हृदय में खास जगह है। And God blesses him on this earth. और परमेश्वर उसको इस पृथ्वी पर आश्रित करता है। And God will also bless him when he enter into heaven. और परमेश्वर जो है उसे स्वर्ग में भी आश्रित करेगा जब वो प्रवेश करता है। And whatsoever the prophet asks, the Lord will give it. और जो कुछ नबी मांगता है वो परमेश्वर उसे देता है। All these things are the rewards of a prophet. और ये सारे जो है प्रतिफल है भविष्यद्वक्ता के। But if you want all these rewards, अगर आपको ये सारे बातें चाहिए, you don't need to be a prophet. आपको जो है भविष्यद्वक्ता होने की जरूरत नहीं है। You can receive him, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं and so you will receive all his reward. और उसके द्वारा जो है आप सारे उसके प्रतिफल को भी प्राप्त कर सकते हैं। Look what you can do by receiving a prophet. देखो किस तरह से आप भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करके आप आशीष को प्राप्त कर सकते You हैं। can receive all the blessings that the prophet has got just by receiving him. आप सारे आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो भविष्यद्वक्ता के है, वो केवल भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करते ही। This happened in my life. ये मेरे जीवन में हुआ है। I invited one man of God into my house. और एक व्यक्ति को मैंने परमेश्वर के दास को मैंने मेरे घर में स्वीकारा। Before he was outside, he was lacking many facilities. और वो जब बाहर था उसके पास कुछ भी सहूलियत नहीं थी He was struggling for many things. और बहुत चीजों के लिए उसके पास कमियां थी। But when I accepted him परंतु जैसे ही मैंने उसे स्वीकार किया and I gave him all the facilities, और मैंने सारे जो है फैसिलिटियां उसको दी I received all his gifts. और उसके सारे दान मुझे मिल गए I received his revelation knowledge. और उसका प्रकटीकरण का ज्ञान मुझे मिला I also received his power. और उसका सामर्थ्य भी मुझे मिला। Look what has happened when I received a prophet. देखो मैंने जैसे ही नबी को स्वीकार किया क्या हुआ, I received his reward. मैंने उसका प्रतिफल को प्राप्त किया। So when you receive a man of God, जब आप परमेश्वर के दास को स्वीकारते you हैं receive his reward as well. आप उसका प्रतिफल को भी प्राप्त As करते I हैं। told you in the scriptures before, और जैसे ही मैंने वचन में से आपको बताया है, sometimes you should be careful of false prophets आपको पहले कुछ समय जो है गलत नबियों से ध्यान रखना है, who has no power but speak only the words. जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, केवल वचन को बोलते हैं। You will know them by their fruit. आप उनके फलों के द्वारा उनको पहचान सकते हैं। They don't operate in love. वो प्रेम में व्यवहार नहीं करते, They operate in selfishness, greed and covetousness. वो जो है बुराई में, कपट में और लोभ में काम करते हैं। So be careful of them. तो उनसे सावधान रहे। Don't entertain false prophets. गलत नबियों को जो है आप वाहवा ना करे। Know the word well परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जान ले so that you can receive the right man of God. ताकि सही परमेश्वर के दास को आप स्वीकार कर सके। Let's listen to some more scriptures. और कुछ वचन पढ़े। And the Bible says in verse 41, the second phase, 41 का दूसरा भाग, and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। Suppose if you accept a righteous man, अगर समझिए कि आप धर्मी को स्वीकारते हैं, so you also get his reward. आपको उसका भी प्रतिफल मिलेगा। The Lord is always pleased with the righteous. और परमेश्वर हर समय जो है धर्मी नीतिमान लोगों से
तृप्त होता है। So whatever blessing the righteous man deserves, और जो कुछ जो है धर्मी जो है आशीष का योग्य है, you just receive that reward just by accepting him. केवल उसको स्वीकार करते ही आपको उसका प्रतिफल मिल जाता है। The prophet must have worked very hard to be a prophet. और जो है नबी जो है बहुत सारा मेहनत किया होगा उस नबी बनने के लिए। And you can take his reward by just accepting him. आप उसका प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं केवल उसको स्वीकारते ही। So it is very important to accept, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ग्रहण करना, and it's very dangerous to reject. और ये बहुत ही खतरनाक बात है नकारना। By accepting, you just take the reward of that person. और उसको स्वीकारते ही आप उस व्यक्ति का जो है प्रतिफल को प्राप्त So करते it's a हैं। great privilege to accept the man of God तो परमेश्वर के दास को स्वीकार करना ये बहुत ही बड़ा योग्य बात है, and respect him. और उसका आदर करें। And let's turn to one more scripture. और एक और वचन की ओर ध्यान दें, Verse 42 of Matthew chapter 10. 42 उसका मत्ती 10 का। And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीत से अपना प्रतिफल ना खोएगा। The Bible says, बाइबल में लिखा है, even if you give the disciple a cup of water, यहाँ तक कि आप शिष्य को ग्लास पानी भी दे, you will not lose the reward. आप जो है उस प्रतिफल को नहीं खोएंगे। Normally when somebody comes to house, और जब कोई आपके घर में आता है, you don't mind giving them water आप जो है उसका चिंता नहीं करते कि आप उनको पानी दे, because it doesn't cost you much. क्योंकि वो आपको ज्यादा खर्च नहीं करता। Even though somebody, he comes in front of your house and he asks for some water, you still give him water. अगर कोई भी आपके घर के सामने आता है और आप उसको पानी देते हैं, फिर भी आप उसको दे देते हैं, Because it doesn't cost you much. क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा कीमती नहीं है। You have to do a very little effort in giving water. और थोड़ा सा आपको मेहनत करना है कि वो पानी लाकर दे दे। So even though you do little things अगर यहाँ तक कि थोड़ा सा काम भी आप करें for the man of God, परमेश्वर के दास के लिए, God will surely reward you. और परमेश्वर जरूर आपको आशीषित करेगा। If God will reward you for doing little things to the man of God, अगर परमेश्वर आपको छोटे छोटे काम करने से आशीषित करता है जो उसके दास के लिए आप करते हैं, how much more will he reward you if you do big things for the man of और God? कितना ज्यादा आपको वो आशीषित करेगा अगर आप बड़े काम करें परमेश्वर के दास के लिए। So be always, have a receiving mind and a respectful mind for the man of तो God. इसीलिए हर समय जो है प्राप्त करने का मन, मनुष्य को परमेश्वर के दास को स्वीकार करने का मन और आदरणीय मन रखे परमेश्वर के दास के लिए, So that you get his reward and also blessings from God. ताकि उसका प्रतिफल आप प्राप्त करें और उसके आशीष को भी प्राप्त कर सके। And let's turn to chapter 11. मत्ती 11। And here, this is where John the Baptist has to finish his journey. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा को अपना यात्रा को समाप्त करना है। So before he finishes his journey, और अपनी यात्रा को समाप्त करने के पहले he sends his disciples to Jesus, वो अपने शिष्यों को यीशु मसीह के पास भेजते हैं, inquiring whether is he the one or the true son of the living God, or somebody will have to come. ये पूछने के लिए कि क्या वही सही परमेश्वर का बेटा है या किसी और के लिए हमें रुकना है। We see that John the Baptist was almost doubting Jesus. और हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा पूरी तरह से यीशु मसीह पर भी अभी शक कर रहे हैं। So what did Jesus do? तो यीशु मसीह ने क्या किया? Let's meditate on that. तो उस पर हम मनन करें। Matthew chapter 11, मत्ती 11 from verse 1, 2 and 3. और उसका 1, 2 और 3। And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in the cities. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent 2 of his disciples, and they said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Now when John the Baptist was put in prison by the king of that land, और जब यूहन्ना बपतिस्मा को उस देश के राजा ने बंदीगृह में डाला, and he was in the prison for many days, और बहुत दिनों से वो बंदीगृह में था, so he was scared, और वो डर गया, and then he was doubting Jesus. तब वो यीशु मसीह पर शक करने लगा, He was thinking, why Jesus is not delivering me? और वो सोचने लगा कि क्यों यीशु मुझे छुटकारा नहीं दे रहा है, Why is he not setting me free? क्यों मुझे आजाद नहीं कर रहा है। So he started doubting Jesus. तो वो यीशु मसीह पर शक करने लगा। Sometimes when delay occurs in our life, we start doubting Jesus. कुछ समय जो है हमारे जीवन में देरी होने लगती है तो हम भी यीशु मसीह पर शक करने लगते हैं।
Sometimes Jesus takes in his own time in healing you. और यीशु मसीह कुछ बार अपने ही समय लेते हैं आपको चंगा करने में, Sometimes he takes time in blessing you और कुछ समय जो है आपको आशीष करने में अपना समय लेते हैं, because he works it out for your good. क्योंकि वो आपके भलाई के लिए कार्य करते हैं। The Bible says all things work out good for those who love him. और शास्त्र में लिखा है कि सारी बातें मिलकर उनको भलाई को ही उत्पन्न करती है जो उनसे प्रेम करते You हैं। need to understand that God loves you always. और आपको ये बात को समझना है कि परमेश्वर हर समय आपसे प्रेम करता है, And let not the circumstances create fear in you. और ऐसा कभी ना हो कि परिस्थितियां आपके अंदर भय को उत्पन्न करे, And the fear brings doubt. और जो है भय जो है शक को ले आता है। Know that Jesus loves you. और इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, He will surely deliver you. वो जरूर आपको छुटकारा देंगे। So here now John the Baptist sent his disciples to inquire whether is Jesus the one or someone will have to come after him. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा ने जो है अपने शिष्य को भेजा कि मसीहा तो आने वाला है, वो तू ही है या किसी और के लिए हम रुके। So what did Jesus say and how did he respond? तो यीशु मसीह किस प्रकार से प्रतिकार करता है या उसे उत्तर देते हैं। Let's turn to verse 4 of Matthew. और चौथा वचन को हम देखें। Jesus answered and said unto them, Go and shew John again these things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk, and the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. और यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, देखते हो और जानकर यूहन्ना के से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को समाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। So Jesus is not giving any answer to them. और यीशु मसीह उन्हें कोई उत्तर नहीं देता, He is telling them, you just see and hear what I am doing. और वो केवल यही कहता है कि सुनो और देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, And go tell him what I am doing. और जाकर उसे कहो कि मैं क्या कर रहा हूँ। And and Jesus was healing some people there. और वहां पर यीशु मसीह कुछ लोगों को चंगाई कर रहा And the था, blind receive, and the blind eyes were open, और अंधे आंख खुल गए, and many lame men walk, और लंगड़े चलने लगे, the lepers cleansed, और कोढ़ी शुद्ध हो गए, the deaf hear, और बहरे सुनने लगे, the dead raised, और मुर्दे जिला उठे, and the gospel is being preached. और सुसमाचार की प्रचार हो गई। So the disciples of John are just watching these things. और ये सारे जो है यूहन्ना के शिष्य देख रहे थे, And he wants these two disciples to carry this news to John. और वो चाह कि ये शिष्य यूहन्ना बपतिस्मा के पास इस समाचार को ले जाए। And how does this information help John? और किस तरह से ये समाचार यूहन्ना को मदद कर सकता है? Because John knew the prophecies क्योंकि यूहन्ना जो है भविष्यवाणियों को जानता है that the one who comes in the name of the Father, कि जो आने वाला जो पिता के नाम से आएगा, whose name is Jesus, जिसका नाम यीशु है, will do these things, वो इन कामों को करेगा, so that he will know that he is the one. तो कि वो जाने कि यह वही है। So he was practically showing that he is Jesus. तो वो जो है प्रैक्टिकली उन्हें बता रहा है कि वो यीशु है, Because the prophecies prophesied in the Old Testament that when Jesus comes, he will do all these things and deliver his people. क्योंकि भविष्यवक्ताओं ने पुराने नियम में ये सब बताया कि जब यीशु मसीह आएगा तो ये सारे बातों को करेगा। So the disciples must have carried this information to John. तो शिष्यों ने जो है ये सारी बातों को जो है यूहन्ना बपतिस्मा के पास ले गए, And then John must have, he must have recollected that words of the prophecies. तब जो है यूहन्ना बपतिस्मा जो है उन भविष्यवाणियों को याद में ले आया, And know that Jesus is sure the Son of the living God. और उस बात को जान लिया कि यीशु मसीह ही सही पक्का परमेश्वर का पुत्र है, And he doesn't need to wait for anyone. और किसी और के लिए उसे रुकने की जरूरत नहीं है, And he is the only one. और केवल वही है, He is the only way, केवल वही मार्ग है, the light, the truth. सच्चाई और जो है जो रोशनी है। He is the beloved Son of the Father in heaven. परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसका प्रिय पुत्र There है। is no other way you can go to God the Father. कोई दूसरा मार्ग नहीं जो पिता परमेश्वर के पास आप जा सकते हैं। So then he says in verse 6, और छठवीं आयत में वो and कहता है, blessed is he whosoever shall not be offended in me. धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। God wants us to trust him completely. और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर भरोसा करें। The devil want to shake your faith. और शैतान जो है आपके विश्वास को डगमगाना चाहता The है, problems want you to doubt Jesus. और समस्या लाना चाहता है कि आप उस पर शक करें, To know that is God really loving me? कि जाने कि ये सच में क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्या, Will he deliver me? क्या सच में वो मुझे छुटकारा देगा। But I am telling you the truth. परंतु मैं आपसे तुमसे सच कहता हूँ, Jesus will never leave you nor forsake you. यीशु ना कभी आपको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। You must be in a very horrible state today. आप भले ही
शायद आज बहुत ही खतरनाक समस्या में रहे। You must be groaning in pain. आप जो है दर्द में चिल्लाते हो, You must be in fear. आप जो है डर में रहे, Or you must be in a very terrorized situation. और बहुत ही भयंकर और भय की परिस्थिति में क्यों ना रहे, But don't doubt Jesus. परंतु यीशु मसीह पर शक न करे, Just trust him today. केवल आज उस पर भरोसा करे, He will surely deliver you from every problem. और हर एक समस्या से जरूर वो छुटकारा देगा। He is a merciful God. ओ दया का परमेश्वर है, He loved us more than the love of a mother. और माँ की प्रेम से भी उसने हमसे प्रेम किया है। Let's just surrender to him and catch hold of the faith. केवल उसको समर्पण करे और जो है विश्वास में पकड़े रहे। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें? Father, in the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम से Lord, today, आज प्रभु Lord, we want to trust in you. हम तुझ पर भरोसा करना चाहते Even हैं। though the devil want to create doubt in us, यहाँ तक दुष्टात्मा हम पर जो है शक लाना चाहता है, it wants to create fear in us. हमें भय लाना चाहता है, Lord, no problem can take out the viewers. और पिता कोई भी समस्या जो है दर्शकों को ताबा ना करे, No sickness will kill them. कोई बीमारी उन्हें ना मार सके, Lord, you will heal them. और पिता तू उन्हें चंगा करेगा, Nothing can terrorize them. और कुछ भी उन्हें भय नहीं ले आएगा, Lord, you will surely deliver them. और सही रीति से पक्का तू उन्हें छुटकारा देगा। I command the spirit of fear to come out of the viewers. भय निकल जा देखने वालों I से। release the spirit of faith. मैं विश्वास की आत्मा को उन पर छुटकारा करता हूँ। Jesus, we love you. यीशु हम तुझसे प्रेम करते We हैं, trust you. हम तुझ पर भरोसा करते Lord हैं। Jesus, deliver every one of the viewers. प्रभु परमेश्वर जो हर एक दर्शकों को आशीष कर, Let them know that you love them. और वे जाने कि तू उनसे प्रेम करता है। I release your love into their heart. मैं तेरे प्रेम को उनके हृदय में छुटकारा करता हूँ। I release deliverance to everyone. हर एक के लिए छुटकारा की घोषणा करता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen.